کہ بہاولپور، رحیمیہ خان اور سرگودا میں چیمبر آف کامرس کے الیکشن ووٹنگ کا عمل جاری۔ کارپوریٹ اور ایسوسیٹ کلاس میں ایگزیکٹو ممبرز کے چناؤ کے لیے پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ رحیمیہ خان میں چیمبر کے الیکشن میں روایتی حریف فرینڈز بزنس فورم اور فاؤنڈر گروپ کے امیدوار مد مقابل ہیں، جبکہ بہاولپور میں فاؤنڈرز گروپ اور اتحاد گروپ کے مابین مقابلہ ہے۔ سرگودا میں بھی فاؤنڈرز گروپ اور بزنس شائن الائنس گروپ آمنے سامنے ہیں۔ مزید اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیمیہ خان سے بیورو چیف عاصم صدیق۔ عاصم، بتائیے گا پولنگ جاری ہے، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، پولنگ جاری ہے اور یہ چیمبر آف کامرس کی بلڈنگ ہے، یہاں سے ووٹر داخل ہو کر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اندر جا رہے ہیں۔ دونوں روایتی حریف مد مقابل ہے، فرینڈز بزنس فورم اور فاؤنڈر گروپ۔ رائٹ سائڈ پہ جو ہے فرینڈز بزنس فورم کا کیمپ لگا اور لیفٹ سائڈ پہ فاؤنڈر گروپ، اور دونوں کے امیدوار یہاں پر کھڑے ہیں۔ جو ووٹر آ رہے ہیں ان سے ملا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے۔ فاؤنڈر گروپ کے چیئرمین اور گروپ لیڈر حاجی ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حاجی صاحب، پورے الیکشن کی کمپین کے بعد آج ووٹ ڈالنے کا عمل ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کیسا جا رہا ہے، ووٹرز کا رجحان کیسا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھا جا رہا ہے، اور جو چیمبر کے الیکشن والے عملہ ہے انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے فی الحال، اور میری دعا ہے کہ اللہ کے آگے بھی جو 2-4-5 گھنٹے رہ گئے ہیں اسی طرح چلتا رہے، اور انشاءاللہ تعالی فاؤنڈر کو اپنا کامیابی کامران کی۔ پہلے 4-5 سال فاؤنڈر گروپ، اب فرینڈز گروپ ہے، تو کیسا آپ سمجھتے ہیں کہ تاجروں کی بہتری کے لیے چیمبر آف کامرس کیسا دیکھتے ہیں؟ ہم تھک گئے تھے، ہم نے کہا ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ یہ اپنی لوگوں کی خدمت کر لیں۔ اب لوگوں کی انہوں نے خدمت کر لی، اب ہم کر کے دوبارہ خدمت کریں گے۔ بالکل پورا امید ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے۔ اسی طرح فاؤنڈر فرینڈز بزنس فورم کے بھی یہاں پر رش لگا دیکھ رہا ہے۔ عثمان صاحب، ووٹ ڈالا ہے آپ؟ جی بالکل، جی ڈالا ہے۔ آپ فرینڈز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو کیسا آپ نے پوری ایک محنت کی، کمپین چلائی، کمپین چلانے کے بعد ووٹ ڈالنے کا عمل ہے، ووٹرز آ رہے ہیں تو دل تو دھڑک رہا ہوگا؟ بالکل جی، اور میں بڑا پر امید ہوں کہ فرینڈز گروپ انشاءاللہ آج کلین سویپ کرے گا۔ چیمبر آف کامرس رحیمیہ خان کی انڈسٹری کی جو تاریخ ہے اس میں آج یہ تاریخ رقم ہوگی کہ فرینڈز بزنس فورم جو ہے اپنی 14 کی 14 سیٹیں جو نکالے گا اور انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ بالکل 14 کی 14 سیٹیں نکالے گا، کامیاب ہوگا، کیونکہ ایسوسیٹ اور کارپوریٹ کلاس کی دونوں کلاس میں ہیں، اور یہ سیکیورٹی کی آپ دیکھیں کہ ووٹرز بھی بالکل کم تعداد میں جانے دیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر کوئی گھشت پیدا نہ ہو۔ پولنگ بوتھس بنائے گئے ہیں، وہاں کینڈیڈیٹس یہاں پر موجود ہیں۔ ذوالفقار گل صاحب، آپ ایسوسیٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں فاؤنڈرز گروپ کے، تو کیسی آپ کی کمپین جاری تھی؟ اور اب الیکشن کا دن ہوتا ہے اور خاص طور پر امیدواروں پر بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے رزلٹ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ شام کو ہم کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ۔ افضل بڑی صاحب، کیسی کمپین رہی؟ کیا جائے گا؟ عاصم صدیق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ادھر ڈی ڈی خان میں بھی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے بلا مقابلہ 9 منتخب عہدیداروں کی روحی سے گفتگو، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی اور مل کر مسائل حل کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ بات کریں گے اقبال صادق سے۔ اقبال، بتائیے گا مزید۔ غالب خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا الیکشن ہو چکا ہے، متفقہ طور پر یہ الیکشن ہوا ہے، بلا مقابلہ یہاں پر جو ممبرز ہیں ایگزیکٹو وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ تو میرے ساتھ کارپوریٹ کلاس اور جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کلاس ان کے ممبرز کچھ موجود ہیں، ہم جانتے ہیں اس الیکشن کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے آپ بتائیے گا، آپ تو اس چیمبر کے بانیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، الیکشن کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور آنے والی حکمت عملی کے حوالے سے بتائیے گا، اگر آپ کے پاس صدور کے حوالے سے کچھ انفارمیشن ہے، کیونکہ 29 تاریخ کو پھر آپ لوگ ہی کسی صدر کو منتخب کریں گے، اس حوالے سے بھی کچھ بتا دیں، وہ فیصلہ کس طرح سے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ڈی جی خان چیمبر آف کامرس میں جو بھی انتخابات ہوتے ہیں وہ متفقہ طور پہ ہوتے ہیں، اور متفقہ طور پہ جو بھی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ اس دفعہ بھی ہاؤس نے متفقہ طور پہ فیصلے کیے اور منتخب کیے ممبران ایگزیکٹو، جن میں میں بھی ایک بندہ شامل ہوں۔ تو یہاں سارے معاملات متفقہ طور پہ ہوتے ہیں، یہاں کوئی سیاسی عمل دخل نہیں ہے کسی کا بھی، اور خالص کاروباری لوگ ہیں۔ اور مقابلے میں کوئی گروپ بھی نہیں ہے اور موجود؟ ہاں جی، اور مقابلے میں کوئی خاص گروپ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں بہت اچھا مینجمنٹ سسٹم چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور صدر جو ہوں گے منتخب وہ بھی ایک متفقہ طور پہ ہی ہاؤس جو فیصلہ کرے گا اس پہ ہوں گے۔ باقی ہمارے ڈی جی خان چیمبر کا ایک پرابلم ہے کہ یہاں بلڈنگ کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے، جو کہ اسٹیٹ سے بہت دفعہ ڈیمانڈ کی گئی ہے حکومت پنجاب سے، یہاں ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ہمارا
हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि हमें जगह मुहैया की जाए और हम खुद अपनी बिल्डिंग बना के एक अच्छा दफ्तर बना के इस सिस्टम को चला सकें। जी बिल्कुल, ये 9 मुंतखब मेंबर थे, बानियों में ये शामिल होते हैं। इनका ये कहना है आगे जो सदर मुंतखब होंगे वो भी बिला मुकाबला होंगे, इत्फाक़ राय से वो सदूर मुंतखब किए जाएंगे, जिसमें सदर और नायब सदर, सीनियर नायब सदर शामिल होंगे। अब इनका यही कहना है चूँकि मुखालिफ में कोई ग्रुप नहीं है तो इसलिए हमेशा यहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं वो मुतफ़िक़ा राय के साथ, इत्फाक़ के साथ कुछ मेंबर्स को मुंतखब कर लिया जाता है और इसी तरह मुतफ़िक़ा तौर पर मेंबर्स को मुंतखब कर लिया जाता है। इकबाल सादिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अपनी बहन की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। रात गए उन्होंने शहर का दौरा किया और अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें भी की थीं। सीएम की आज भी सर्किट हाउस में अहम मुलाकातें होंगी। बात करेंगे अली रियाज से। अली रियाज, बताइएगा गुज़श्ता रात किस किस से मुलाकात हुई और आज किस किस से मुलाकात शेड्यूल है? बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब के अपने मसरूफ तरीन दौरे पर जो क़याम पज़ीर है मुल्तान में अपनी रिहाइशगाह जो कि ग्रीन एवेन्यू यहाँ पर है, और गुज़श्ता रात भी उनकी मुस्तक़बिल ऐसी रही है कि उन्होंने बगैर प्रोटोकॉल के मुल्तान शहर का दौरा किया और तमाम तो जो मुख्तलिफ सूरत हाल है उसका जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे जिन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और PHA को खुसूसी तौर पर हिदायत दी कि वो तमाम तर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अपने जो तमाम तर प्रोजेक्ट जारी हैं उनको जल्द मुकम्मल करे। इस सिलसिले में वज़ीर सरदार उस्मान बुज़दार ने मुख्तलिफ मीटिंग्स भी अटेंड की है, सेक्रेटरीट के हवाले से भी खुसूसी सेक्रेटरी से मीटिंग की है और गुज़श्ता 2 रोज़ से जो मसरूफियात रही हैं जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है। आवाम से खासे घुल मिल गए हैं, लोगों की बातें भी सुनी है और गुज़श्ता रोज़ जो मुख्तलिफ इलाकों डेरा गाजी खां के मुख्तलिफ नुमाई इलाकों में कोई सलमान के करीब भी गए हुए थे, वहाँ पर भी उनका जो विजिट था काफ़ी खुशगवार रहा है। और आज भी ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज मुतवक्का तौर पर यह इम्कान ज़ाहिर किया गया कि हो सकता है कि सर्किट हाउस में उनकी मीटिंग हो और अभी जो है वो अपने घर में क़याम पज़ीर है। यहाँ पर ग्रीन व्यू जो सोसाइटी है यहाँ पर, और यहाँ पर इस हवाले से सिक्योरिटी के भी खासे सख्त इंतजाम है, तो अभी तक तो अपने घर में ही मौजूद है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि कुछ देर में यहाँ से रवाना होगा। उसके बाद देखना यह है कि इम्कानात यही है कि सर्किट हाउस से मीटिंग होगी और उसके बाद जो है लाहौर रवाना हो जाएंगे। लाहौर रवाना हो जाएंगे। अली रियाज, आपका शुक्रिया। सूरत हाल पर निगाह रखिएगा। सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गुज़श्ता रात भी कुछ अहम मुलाकातें हुई और आज भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सरबराही में मुल्तान में खुसूसी इजलास हुआ। जनूबी पंजाब के तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने बिहाड़ी, मुल्तान, भारती और फाजिला कच्छ के दौरे के दौरान अवामी मुतालबात पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब का इस मौके पर कहना था कि जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज अपने दरवाजे अवाम के लिए खुले रखें, अवामी नुमाइंदों की तजावुज़ात और सिफारिशात को मलहूज़ खातिर रखा जाए, किसी भी जायज़ काम को ना रोका जाए। मसाइल के हल पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए खुद मीटिंग लूंगा। वज़ीर आला पंजाब के डीडी खान के दूर दराज इलाकों में पुलिस का गश्त दोबारा से शुरू करने की हिदायत। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और मुल्तान और डीजी खान के कमिश्नर, RPOs और डिप्टी कमिश्नर और मुतलका हुक्काम ने शिरकत की। सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शहर औलिया की खूबसूरती बारे अहकाम जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को जीरो वेस्ट का टारगेट दे दिया है। शहर के 14 सेक्टर से आज तमाम कूड़ा करकट उठाने का हुक्म जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की CO अब्दुल लतीफ खान को अहकाम पर 100% अमल दरामद करवाने की हिदायत। जीरो वेस्ट का टारगेट दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की जानिब से शहर के 14 सेक्टर से आज तमाम कूड़ा करकट उठाने का हुक्म जारी किया गया है। सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के इलाके भारती में नई THQ अस्पताल की तामीर जारी है। बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, कहिएगा कब तक ये THQ मुकम्मल कर लिया जाएगा? पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के आबाई इलाके भारती में इस टाइम हम मौजूद हैं और यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की जानिब से दही मरकज़ सेहत को अब तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल का दर्जा दे दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, उस्मान नवाज आपको दिखा सके, ये नई बिल्डिंग जो है यहाँ पर ज़ेर तामीर है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने इसी का संग बुनियाद भी रखा है और यहाँ पर काम जो है तेज़ी से जारी है। यहाँ पर जो दूर दराज के इलाकों से मरीज आते थे, खसूसी तौर के ऊपर उनको तोसा में जाना पड़ता था, लेकिन अब इसके बनने के बाद लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारी सहूलत मिलेगी। शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के इलाके में ये हॉस्पिटल बन रहा है, इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको? जी सर, मेरा नाम सर अब्दुल सलाम बुज़दार है और मैं यहाँ का रहायशी हूँ।
सर जी, सरदार उस्मान खान बुज़दार पिछले दफ़ा जब इलेक्शन हम हार गए थे तो इस इलाके में हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था। हम गुर्बत की लकीर के भी नीचे थे। यहाँ अस्पताल में कोई ना दवाई मिलता था, ना कोई डॉक्टर थी, ना कोई और मौजूद था। अब सरदार साहब के वज़ीर आला हल्फ लेने के बाद तमाम महकमा जो है ना वो इतनी ये इसमें आ गए एक्शन में, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरी अस्पताल इस वक्त बहुत ही अच्छी चल रही है। इसमें 8 डॉक्टर मौजूद हैं, विमेन डॉक्टर मौजूद हैं, डेंटल डॉक्टर मौजूद हैं। कितना की आबादी है यहाँ पर भारती की, कितना की आबादी है, कितना लोग इस अस्पताल से मुस्तफिद हो? हमारे सरदार साहब चीफ बुज़दार हैं सर, उसके इलाके में 5 यूनियन काउंसिलों पर मुश्तमिल एक ही RSC भारती है, जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। इस वक्त भी गुर्बत के लकीर के नीचे जो लोग हैं उनके यहाँ अभी तक झूंपड़ियों में लोग वो गुजारा करते हैं, उनके पास कमरे मकान नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उनके पास कोई चीज मौजूद नहीं है। आसिर, आपका शुक्रिया। तालीमी इदारों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कोविड-19 वायरस का खतरा बढ़ गया। बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर डोगर, बताइएगा क्या सूरत हाल है तालीमी इदारों के अंदर? ऐसा है कि मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की जानिब से तालीमी इदारों की मॉनिटरिंग का फैसला किया गया और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ने चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा एजुकेशन के अफसरान को यह हिदायत की है कि फौरी तौर पर मुजफ्फरगढ़ में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं और प्राइवेट अकेडमी उनकी फौरी तौर पर मॉनिटरिंग की जाए। इस सिलसिले में महकमा एजुकेशन की जानिब से भी टीमें जो वो तश्कील दे दी गई हैं, जो कि रोजाना की बुनियाद पर प्राइवेट स्कूलों में SOPs की जो है वो चेकिंग करेंगी और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों को फौरी तौर पर बंद करने के अहकाम भी जो जारी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया कि गुज़िश्ता रोज स्कूलों को सील कर दिया जाएगा। आमिर, आपका शुक्रिया। उधर रहीमा खान के CEO एजुकेशन राना मोहम्मद अजहर खान का कहते हैं कि जिले भर के सरकारी और निजी स्कूलों में कोविड-19 SOPs पर सख्ती से इंप्लीमेंटेशन करवाया जा रहा है। बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा। मेरे ख्याल में इस वक्त मैट्रिक से लेकर एंटर तक की जो क्लासेस हैं उनका जो सिलसिला है वो जारी है, मगर जो SOPs हैं उन पर किस हद तक अमल किया जा रहा है, इसी हवाले से जानते हैं CEO एजुकेशन राना मोहम्मद अजहर खान से। सर, एक बड़ी मुश्किल वक्त है, लेकिन हम पे जिम्मेदारियां भी हैं कि हमने SOPs पर भी अमल करना है। ये बताएगा कि असातिज़ा और बच्चों के जो कोरोना के जो सैंपल्स हैं उनको लेने का जो सिलसिला है वो कब से स्टार्ट किया जाएगा और मॉनिटरिंग किस तरह से की जा रही है? अभी तक किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूल के खिलाफ जो SOPs पे अमल नहीं करते उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात जो आपने टेस्टिंग की बच्चों की, वो टेस्टिंग तो शुरू हो चुकी है हमारी। पिछले जब से स्कूल खुले 16-17 से बच्चों के टेस्ट महकमा हेल्थ वाले ले रहे हैं और उनको बहावलपुर लेकर जाना होता है, जहाँ से लेबॉर्ट्री को उसको चेक करवाएंगे, वहाँ से फिर रिपोर्ट आएगी तो फिर पता चलेगा कि क्या सूरत हाल थी। रोजाना की रिपोर्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा क्या सूरत हाल है। आमिर, आपका शुक्रिया। कोविड-19 का खतरा, महकमा सेहत की जानिब से तालीमी इदारों में सैंपलिंग का अमल जारी है। 500 के करीब स्टाफ और बच्चों की सैंपलिंग की गई। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक 48 घंटों के बाद रिपोर्ट सामने आएंगी। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि टेस्ट ज्यादा होने के बायस रिपोर्ट ताखीर से आ रही है। कोविड-19 का खतरा, महकमा सेहत की जानिब से रैंडम सैंपलिंग का अमल जारी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर 500 के करीब स्टाफ और बच्चों की सैंपलिंग की गई है। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक 48 घंटों के बाद रिपोर्ट सामने आएंगी। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि टेस्ट ज्यादा होने के बायस रिपोर्ट ताखीर से आ रहे हैं। सितल रोड पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जगह जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम का मामला। हुकूमत पंजाब ने 584 किनाल 19 मरले जगह सूबा जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट के क़याम के लिए दे दी है। मजीद बात करेंगे मोहम्मद मकसूद से। मोहम्मद मकसूद, बताइएगा मजीद। बिल्कुल, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की जगह जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम मुल्तान के खिलाड़ियों के लिए वबाल जान बन गया है। उनका कहना है कि मुल्तान में वाहिद जगह थी जिसको 584 कनाल 19 मरला पे मुहित थी और यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया जाना था। गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से भी इसका इफ्तिताह किया गया और मौजूदा हुकूमत के जो CM हैं जनाब सरदार उस्मान बुज़दार, यहाँ पर उन्होंने आस्ट्रोटर्फ का संग बुनियाद भी रखा, लेकिन उसके बाद अब सिविल सेक्रेटेरिएट का जो एक नया इशू यहाँ पे सामने आया, उसके हवाले से जो मुल्तान के खिलाड़ी हैं वो परेशान होकर रह गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साउथ पंजाब के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर, उनसे बात करेंगे। जमील कामरान साहब, सर बताइएगा, 584 19 मरला ये जगह है जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को दी गई थी और अब यहाँ पे सिविल सेक्रेटेरिएट बनने जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? कितनी मुश्किलात का सामना होगा खिलाड़ियों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बहुत दुखी हूँ इस लिहाज से कि हमारे पूरे साउथ पंजाब में आप देखें कोई भी अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है
और ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि इस जगह पे जो कि 3 मुरब्बे से ज़्यादा जगह है, यहाँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनना था और गुज़श्ता हुकूमत में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ इसका बाकायदा संग बुनियाद रखा और उसके बाद ये काम ना शुरू हो सका। बड़ी कोशिशों के बावजूद भी, बड़ी कोशिशों के बाद मौजूदा हुकूमत में यहाँ हॉकी का ऑस्ट्रोटर्फ स्टेडियम यहाँ बनना था और उसका बाकायदा संग बुनियाद रखा गया सर्किट हाउस में जो तकरीब हुई थी आज से तकरीबन मेरे ख्याल 9-10 महीने पहले। लेकिन अब उस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने की जगह आज यहाँ सिविल सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि मुल्तान के खिलाड़ियों के लिए नहीं, पूरे साउथ पंजाब के खिलाड़ियों के लिए एक कत्ल करने के मुतरादिफ है। हमारी नौजवान नस्ल को ग्राउंड चाहिए भाईजान। सिविल सेक्रेटेरिएट, आप जो डिस्ट्रिक्ट जेल का आपका मंसूबा है कि वहाँ पार्क बनाना, सिविल सेक्रेटेरिएट वहाँ भी बन सकता था, लेकिन हमेशा स्पोर्ट्स मैनों को ही क्यों कत्ल किया जाता है, उनके ग्राउंड क्यों छीने जाते हैं? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर स्पोर्ट्समैन को ही क्यों कत्ल किया जाता है। बहुत शुक्रिया मकसूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कस्टम ड्राईपोर्ट शेरशाह पर जब्त शुदा गाड़ियों और मुतफरक सामान की नीलामी कर दी गई। नीलामी में 2.5 करोड़ मालियत की 23 गाड़ियों और 30 लाख मालियत का मुतफरक सामान रखा गया। सामान में टायर्स, कपड़ा, खुश्क दूध और दीगर सामान शामिल है। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। गाड़ियों और मुतफरक सामान की नीलामी कर दी गई। ऑक्शन में 2.5 करोड़ मालियत की 23 गाड़ियां, 30 लाख मालियत का मुतफरक सामान रखा गया, जिसमें टायर्स, कपड़ा, खुश्क दूध और दीगर सामान शामिल है। मालसी से आपको अपडेट करते चलें। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद जहांजेब खान ने मार्केट कमेटी का दौरा किया है। हवाल जानेंगे अब्दुल समद चौधरी से। जी अब्दुल समद। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद जहांजेब खान खींची ने मार्केट कमेटी मेलसी का जो है वो आज दौरा किया है। चेयरमैन मार्केट कमेटी मियां अल्लाह खालिद ने दी जाने वाली शहरियों को सहूलियात मार्केट कमेटी के हवाले से मुकम्मल जो है वो ब्रीफिंग दी है। मेरे साथ इस वक्त सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद जहांजेब खान खींची साहब मौजूद है। मजीद इनसे बात करते हैं आज के इस विजिट के हवाले से। खान साहब बताइएगा। मार्केट कमेटी मेलसी के हवाले से आज मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं यहाँ पर आया हूँ। भाई साहब जो हमारे ग्रुप के चेयरमैन हैं, इनकी कारकर्दगी माशाल्लाह बड़ी मुतासिर कुन है। इनकी पूरी टीम ने एक बेहतरीन टीम वर्क के तौर के ऊपर इंशाल्लाह इसकी मार्केट कमेटी के रेवेन्यू में भी इजाफा किया है और जो इनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी हमारे से डिस्कशंस इनकी हुई हैं। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह हमारी मार्केट कमेटी वन ऑफ द बेस्ट मार्केट कमेटी होगी पंजाब की इंशाल्लाह। हमारी मार्केट कमेटी वन ऑफ द बेस्ट मार्केट कमेटी होगी। बहुत शुक्रिया, आप हमें अब्दुल समद अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 781वां उर्स मुबारक 24 सितंबर को शुरू होगा। सेक्रेटरी और डीजी औकाफ उर्स के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज एक रोजा दौरे पर मुल्तान आएंगे। सेक्रेटरी डॉक्टर इरशाद अहमद और डीजी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी उर्स के इंतजामात का जायजा लेंगे। अफसरान की जानिब से दरगाह पर सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी और डीजी औकाफ स्टाफ और अफसरान की कारकर्दगी पर जायजा भी लेंगे। सेक्रेटरी और डीजी औकाफ उर्स के इंतजामात का जायजा लेंगे। स्पेशल पर्सन्स अपनी फरियाद लिए रोही के दफ्तर पहुंच गए हैं। बात करेंगे सुहिरा तारिक से। सुहिरा, कहिएगा क्या मुतालबात हैं इनके? जी बिल्कुल, मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले खसूसी अफराद आज अपनी फरियाद लिए रोही के दफ्तर पहुंचे हैं और इनका कहना है कि माजूरी की वजह से एक तो कहीं नौकरी नहीं मिलती, दूसरा जितने भी सरकारी इदारे हैं जो कि फ़ंड्स देते हैं वहां से इनको कहीं से फ़ंड भी नहीं मिल सका। ना ही पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से इनको कोई फ़ंड मिला है और ना ही ज़िला बैतुल माल कमेटी से इनको कोई माली इमदाद मिली है। इस हवाले से इनसे बात करेंगे। आप मुझे बताएं कहाँ से आए हैं और क्या मसला? जी मैं चौक शहीदा मुल्तान से आया हूँ और हमें मसला ये है कि हमने एहसास प्रोग्राम में मैसेज वगैरह किए सब कुछ, लेकिन उन्होंने फिर पहले कहा जी आपकी इंक्वायरी हो रही है, फिर उसके बाद उन्होंने हमें मैसेज कर दिया कि आप नाअहल हैं। और मेरे साथ जितने भी हमने मजदूरों ने सब मैसेज भेजे सबको नाअहल कर दिया। इसकी आखिर हमें रीज़न तो बताएं ना कि क्या वजह है कि सानिया साहिबा जो भी हैं इसके कैंडिडेटर वो हमें ये बताएं कि आखिर इसकी क्या वजह है कि क्यों हमें नाअहल कर दिया। बताएं आपका क्या मसला है, आपको माली इमदाद क्यों नहीं मिली? मुझे माली इमदाद पता नहीं क्यों नहीं मिली। मैं खुद इसलिए परेशान हूँ कि हर जगह पे दरख्वास्त दे दे के मैं खुद परेशान हो पड़ा हूँ, कहीं भी मेरी नहीं सुनी जा रही।
जैसा कि आपने खसूसी अफराद से सुना है कि इनकी मैट्रिक जैसे कि आपने खसूसी अफराद से सुना है, सुहिरा तारिक आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने बारे मुतहरिक हो गए हैं। कमिश्नर ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस कैंट सिटी का अचानक विजिट किया। कमिश्नर ने शहरियों से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सर्विस डिलीवरी अमले के सलूक बारे बातचीत की। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रिकॉर्ड को भी चेक किया है, यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। कमिश्नर ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस कैंट का सडन विजिट किया है, सरप्राइज विजिट था और उन्होंने सर्विस डिलीवरी और दीगर मामलात चेक किए हैं। कमिश्नर मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल का दौरा, अस्पताल में मरीजों से सहूलियात बारे बातचीत की। ज़ईफ खातून की कमिश्नर से इलाज में देर बारे शिकायत। कमिश्नर मुल्तान ने एमएस को फौरी इलाज करवाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म किया है। मुअम्मर खातून ने एमएस जो कमिश्नर मुल्तान हैं उनको शिकायत की है और इस पर कमिश्नर ने रिपोर्ट भी तलब कर ली। कमिश्नर की वार्निंग, कहा आइंदा कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल ने अस्पताल का दौरा, अस्पताल में मरीजों से सहूलियत बारे बातचीत की। मुअम्मर खातून की कमिश्नर से इलाज में देर बारे शिकायत। कमिश्नर मुल्तान ने एमएस को फौरी इलाज करवाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म किया। कमिश्नर जावेद महमूद ने डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल का दौरा किया है। मैप्को सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। मैप्को का सार्फिन के लिए वन विंडो सहूलत कस्टमर सर्विस सेंटर अपग्रेड करने का फैसला। सर्विस सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे जबकि 3 शिफ्टों में अमला काम करेगा। मैप्को का सार्फिन के लिए वन विंडो सहूलत कस्टमर सर्विस सेंटर्स को अपग्रेड करने का फैसला। सर्विस सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। बात करेंगे पोलियो मुहिम की। टीएचके अस्पताल अहमदपुर शर्किया में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। हवाल जानेंगे इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। अहमदपुर शर्किया में टीएचक्यू में पोलियो मुहिम का आगाज हुआ है। 5 दिन की ये मुहिम है। मजीद हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आज से हम इनागोरेट कर रहे हैं पोलियो मुहिम को। गवर्नमेंट का इस पे बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए भी है कि रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें मंजर आम पर आई हैं जिस पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस वक्त कंसर्न रखती है। इस सिलसिले में ख़ास तौर पे अब हम सारी इंतज़ामिया का इस चीज़ पे मौसर हमारी हिकमत अमली के तहत एक प्लान है कि इसमें हम पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तमाम तारीख इक़दाम करेंगे। और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है इसी नाते से कि इस सिलसिले में हमारी मदद करें। सारी पोलियो टीमें आप घर घर जाएंगी, इनके साथ तावन करें और इनके साथ तावन किया जाएगा जी, घर घर जाएंगे, तावन किया जाए। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर खानेवाल में भी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। हवाल जान लेते हैं नदीम मुगल से। नदीम बताइएगा। सितंबर से 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ जो है वो आज से बाकायदा जो है वो डिप्टी कमिश्नर खानेवाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी कर दिया है। और पोलियो मुहिम में कितने बच्चों को ज़िला भर में पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर बादशाही से। सर बताइएगा कि 21 सितंबर से 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ हो रहा है, जिसका इफ्तिताह आपने आज किया है, तो ज़िला भर में कितने बच्चों को पोलियो मुहिम में कतरे पिलाए जाएंगे और कितनी टीमें जो हैं वो काम करेंगी? जी ये हमारा जो टारगेट है वो कोई 5,52,000 के लगभग है और हमारे 100 UCMOs इस पे डिप्यूटेड हैं। 1100 से ज़ायद जो हैं वो हमारी मोबाइल टीम्स हैं और इसी तरह 48 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं। तो उस हवाले से हमने जो तैयारी करनी थी मुकम्मल कर ली है। माइक्रो प्लान्स बन चुके हैं। आज असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो अपनी UCMOs के साथ मीटिंग भी कर लेंगे और इंशाल्लाह मैं पर्सनली और असिस्टेंट कमिश्नर्स, हमारे CO साहबा, DHO, बाकी लोग सारे इसको इंशाल्लाह पर्सनली सुपरवाइज़ करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर बच्चा जो है वो पोलियो का खतरा पिए। और मेरी वालिदैन से भी गुजारिश होगी, बाकी सोसाइटी, सिविल सोसाइटी के लोगों से, मीडिया से, कि कोई बच्चा भी जो है वो अनअटेंड ना रह जाए। अगर आप लोगों के इल्म में कोई ऐसा बच्चा हो तो हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम उसको खतरे पिला सकें। कोई बच्चा अनअटेंड ना रह जाए। नदीम आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि माह अक्टूबर में मुल्क भर से रेस्क्यू 1122 की टीमों के दरमियान नेशनल रेस्क्यू चैलेंज के मुकाबले होने जा रहे हैं। तहसील सतह के फायर फुट, ट्रामा और रेस्क्यू की 3 कैटेगरीज के मुकाबलों की तैयारियां इख्तितामी मराहिल में पहुंच गई हैं। अहवाल जान लेते हैं आमिर भट्टी से। आमिर बताइएगा कैसी तैयारियां हैं जवानों की? कि डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू 1122 स्टेशन में इस वक्त जो नेशनल रेस्क्यू चैलेंज है इसकी तैयारियां जो है उरूज पर हैं। आप देख सकते हैं कि इंटर तहसील के मुकाबलों के लिए जो मुतलका टीमों के जो मेंबरान हैं, जो रेस्क्यू एहलकार हैं, वो अपनी जो तैयारियों में मसरूफ हैं। शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद यूनिस सईदी हमारे से मौजूद है, बताएगा कि कब आपके मुकाबले हैं, कितनी कैटेगरीज के मुकाबले होंगे और उनकी जो तैयारी है वो कैसी है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बताया कि 8 से 10 अक्टूबर के दरमियान मुल्क सतह के ऊपर नेशनल रेस्क्यू चैलेंज का कंपटीशन मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें पूरे पंजाब की डिवीजन्स और मुख्तलिफ इदारों की जो टीमें वो शिरकत करती हैं। तो हमारा सबसे पहले 22 सितंबर को तहसीलों के दरमियान कंपटीशन है, जिसमें मेडिकल, फायर, रेस्क्यू और स्विमिंग के कंपटीशन होंगे, और उसमें से जो तहसील के हम इंशाल्लाह जीत के हम डिवीजन सतह के ऊपर फिर 1 अक्टूबर को हमारा इनके मुकाबला होगा, जिससे जो इंशाल्लाह हम जीत के फिर हम नेशनल रेस्क्यू चैलेंज में रहमियार खान की नुमाइंदगी करेंगे। 5 कैटेगरीज है, आज कौन कौन सी कैटेगरीज? हाँ जी, आज जो हमने पहले फायर फाइट की ट्रेनिंग जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो जारी है। इसके अलावा मेडिकल की भी अभी वो तैयारी कर रहे हैं, पीछे जो हमारी रेस्क्यू की तैयारी भी वो भी हो रही है। तो इसके बाद हम जो 4 कैटेगरी के इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चौथी जो कैटेगरी है वो स्विमिंग की कैटेगरी शामिल है। कैटेगरीज की तैयारियों का सिलसिला जारी है। तैयारियां की जा रही हैं। आमिर, आपका शुक्रिया। कोट सुल्तान तहसील अस्पताल में डॉक्टर का मरीजा के साथ जिनसी हरासमेंट का वाकया। मरीजा की बहन ने मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नईम के खिलाफ थाने में दरखास्त दे दी है। डॉक्टर ने चेकअप के बहाने बहन के साथ छेड़छाड़ की, मना करने पर मुझे भी हरासा किया। बुनियादी हेल्थ मरकज की मुलाजमा यमुना ने इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर नईम ने मोबाइल छीना और पुलिस की मुदाखलत पर मोबाइल वापस दिया। एमएस डॉक्टर यूसुफ ने बताया कि सीओ हेल्थ वाकये की इंक्वायरी कर रहे हैं, हकायक सामने आने के बाद कार्रवाई होगी। कोट सुल्तान तहसील अस्पताल में डॉक्टर्स का मरीजा के साथ जिनसी हरासमेंट का वाकया। मरीजा की बहन ने मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नईम के खिलाफ थाने में दरखास्त दे दी है। मुल्तान में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां अपने जोरों पर हैं। एक जानिब यूसी सतह पर जोड़ तोड़ जारी, तो दूसरी जानिब मेयर मुल्तान के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने भी कोशिशें तेज कर दी हैं। तहरीक इंसाफ से मेयर मुल्तान के इब्तदाई तौर पर 6 ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सामने आ गए हैं। सिटी सदर तहरीक इंसाफ अदनान डोगर मेयर मुल्तान बनने के ख्वाहिशमंद हैं। चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजुआ भी मुल्तान के ख्वाहिशमंद हैं। साबिक चेयरमैन MDA राना अब्दुल जब्बार, सिटी जनरल सेक्रेटरी सईद बाबर शाह भी मेयर मुल्तान के ख्वाहिशमंद हैं। मुआविन खुसूसी वज़ीर पंजाब जावेद अख्तर अंसारी अपने बेटे के लिए मेयरशिप की तगदो में, जबकि मेंबर कौमी असम्बली राना कासिम नून अपने भाई को मेयर मुल्तान बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो आपको अपडेट करते चले, 6 उम्मीदवार मंतरियाम पर आए हैं। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां अपने जोर पर हैं। मेयर मुल्तान के लिए 6 उम्मीदवार मंतरियाम पर आ गए हैं। तहरीक इंसाफ से मेयर मुल्तान के इब्तदाई तौर पर 6 ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सामने आ गए हैं। चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजुआ भी मेयर मुल्तान के ख्वाहिशमंद हैं। साबिक चेयरमैन MDA राना अब्दुल जब्बार, सिटी जनरल सेक्रेटरी सईद बाबर शाह भी मेयर मुल्तान के ख्वाहिशमंद हैं। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी अपने बेटे के लिए मेयरशिप की तगदो में, जबकि मेंबर कौमी असम्बली राना कासिम नून ग्रुप भी अपने भाई को मेयर मुल्तान बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजुआ भी मुल्तान के ख्वाहिशमंद। एजाज हुसैन जंजुआ तहरीक इंसाफ के ज़िला सदर भी रह चुके हैं। साबिक चेयरमैन MDA राना अब्दुल जब्बार भी मेयर मुल्तान बनने के ख्वाहिशमंद हैं। सिटी जनरल सेक्रेटरी सईद बाबर शाह भी मेयर मुल्तान के ख्वाहिशमंद हैं। 6 उम्मीदवार मेयर मुल्तान बनने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनके नाम मंतरियाम पर आ गए हैं और उन्होंने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुल्तान डिवीजन में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। इंसदाद पोलियो मुहिम के अफ्ताह कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने बच्चे को कतरा पिलाकर किया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। पूरी दुनिया में पोलियो का मौजूद है। पोलियो का खतरा जो है वो खत्म नहीं होगा और कुछ केसेस जो हैं वो दोबारा पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं और इसलिए इस हमारी जो मुहिम है इसमें हमारी पूरी जो इंतजामिया है, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसर्स, हमारे टीचर्स, पूरी इंतजामिया मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह ताला इसको भरपूर तरीके से हम शुरू करेंगे ताकि कोई बच्चा भी ऐसा जो है वो ना रह जाए कि जिसको पोलियो के कतरे जो है वो ना पिलाए जा सके। पुलिस की हेल्प भी सर आप देंगे इसमें, कोई हिफाजती इंतजाम पुलिस की हेल्प भी लेंगे? हाँ जी बिल्कुल, जो हमारे पुलिस की जो हेल्प है वो बहुत ज़रूरी है और हमारा पूरा एक प्लान बन चुका है। हमारे जो पोलियो वर्कर्स हैं इंशाअल्लाह ताला हम उनको मैक्सिमम सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि वो बिल्कुल सिक्योर और अपने बिला खौफ खतर अपना वो काम सर अंजाम दें और इंशाअल्लाह ताला उनकी सिक्योरिटी पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम कोशिश तो ये करेंगे पहले कि तमाम पेरेंट्स को जो हमारी अवेयरनेस है, कैंपेन है, उनको हम कायल करके अपने इंतजामिया के साथ बच्चों को कतरे पिलाएं। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कोई भी जो केस अगर रिपोर्ट हुआ
तो हम कानून के मुताबिक अमल करेंगे और ये हम बहरहाल इंश्योर करेंगे कि बच्चों को हर हाल में कतरे पिलाए जाएं। देखें, पोलियो की टीमें दूर से नजर आ जाती हैं, उन्होंने कैप पहनी होती है, उनके हाथ में पोलियो के उनके पास कैरियर होता है और उनके साथ सिक्योरिटी होती है, हमारी इंतजामिया साथ होती है। लेकिन ये आपकी बात मैं इंशाल्लाह इस पर हम गौर करेंगे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।